Jai Hind students, class 10 here. Yesterday in the last class we discussed about the problems and conservation of water resources. Now today we are going to understand about forest and wildlife, their uses and their conservation also. So what does it mean, forest and wildlife, and what is the importance of their conservation, and how they are useful to us? So, if we talk about the forest and wildlife, they are of much importance for us. Okay, let us go first with the basic facts of the forest. So, the large areas of the Earth's surface with dominance of trees in the form of natural vegetation are known as forest. जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं, that is declared as forest. And forests are the valuable gift of nature. You already know they are the important natural resource. It is estimated that originally one fourth part of the earth, approximately 25%, was covered by forest, but these forest coverings have been recklessly destroyed by the men for agriculture, settlement, industries, etc. So therefore only 15% area of the earth is covered by forest. So originally जब स्टार्टिंग में ह्यूमन सेटल होना स्टार्ट हुआ था तब 25% एरिया पर, पूरी पृथ्वी के 25% एरिया पर फॉरेस्ट हुआ करता था, and 70% is what is 70%? It is water. It is covered by water. So left 5% was other areas. Okay, so a bigger part, that is 25%, was of forest. Here we started we started the agriculture, settlement, and industries. And because of this particular industries and settlement, agriculture, uh, because of these particular things, we destroyed the forest. Therefore now only 15% less left. अभी 50% ही left है. Natural vegetation depends upon the location of an area, climate, and soil. Distribution of natural vegetation is uneven because location, soil conditions, and climatic conditions are not same. Here natural vegetation, if we talk about natural vegetation, at different area we have different type of vegetation, depending upon area, the climate, weather कैसा है, and then soil also. Distribution of natural vegetation is uneven because of these particular conditions. Okay, now according to the botanical survey of India, there is a survey after every 2 years. We have forest survey. So if we talk about botanical survey, about 47,000 species of plants are found in India. 47,000 species यानी कि 47,000 टाइप के प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं, और इसमें से 47,000 टोटल है, एंड इसमें से 5,000 इंडिया में ही पाए जाते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देर आर 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट. नंबर 1, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सेकेंड, मानसून फॉरेस्ट. मानसून फॉरेस्ट के भी 2 पार्ट है, वेट मानसून फॉरेस्ट एंड ड्राई मानसून फॉरेस्ट. थर्ड इज ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. फोर्थ इज फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन, एंड फिफ्थ इज हिमालयन फॉरेस्ट. Okay, let us go through these particular 5 forests once more. Tropical evergreen forest, then monsoon forest, dry tropical forest, forest of delta region, and fifth is Himalayan forest. So what is the importance of forest to the national economy? If we talk about economic condition of the country, what does forest contribute to the economy of the country? So forests are the national wealth, definitely. So in India about 20.64% of total geographical area is under forest. This is 1.7% of the world's total forest area. टोटल फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात करें वर्ल्ड की, तो 1.7% पूरे वर्ल्ड का इंडिया में है एज अ फॉरेस्ट, यू नो. एंड इंडिया की बात करें तो 21% अप्रोक्सीमेटली वी हैव फॉरेस्ट एरिया, विच इज़ वेरी ग्रेट थिंग. बट अब धीरे धीरे ये ख़त्म होता जा रहा है, तो एक टेंशन है कि अगर ये ख़त्म हुआ देन देयर वुड बी
great damage to the environment. The country possesses an average of 0.11 हेक्टेयर पर पर्सन अंडर फॉरेस्ट एरिया. सो अगर हम पर पर्सन बात करें तो 0.11 हेक्टेयर एक पर्सन के एवरेज एक पर्सन के ऊपर टोटल 0.11 हेक्टेयर एरिया आता है फॉरेस्ट का. वेराइटी ऑफ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉरेस्ट आर फाउंड हियर. मेजोरिटी ऑफ हार्डवुड ट्रीज आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. सो हार्डवुड ट्रीज ज़्यादा पाई जाती हैं इन एरियाज़ में. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टेटमेंट गिवन बाय PH Chaturvedi, he said forests are the national wealth and are very necessary for civilization also. They do not provide food. They not only provide food but also provide variety of raw material, fodder, and generate national income. So if we talk about the direct and indirect benefits, we have a lot of direct as well indirect benefits. Like directly we obtain food, we obtain different raw materials like wood for furniture industries. Then medicines are also obtained from forest only. Then apart from these, fruits are also used, and different parts of the plants are used for different purposes. So it is very important. And indirectly there are also many benefits. So according to a naturalist Bacon, what Bacon said, he said we get oxygen, water, वुड एंड कैपेसिटी टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो सिर्फ इससे हमको इकोनॉमिकली ही फ़ायदा नहीं होता बट एनवायरनमेंट को भी सेफ रखने में मदद मिलती है. नाउ व्हाट आर द डायरेक्ट बेनिफिट्स? लेट अस अंडरस्टैंड द डायरेक्ट बेनिफिट्स टुडे एंड देन इनडायरेक्ट्स विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास. फर्स्ट थिंग, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस वुड. हमको इससे लकड़ी मिलती है. एंड डिफरेंट ट्रीज लाइक टीक, साल, शीशम, पाइन, एबनू, सैंडलवुड एंड डियोडर. दिस पर्टिकुलर ट्रीज आर वेरी important in India. Then forest provides minor forest produce. फॉरेस्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी होते हैं, छोटी चीज़ें जैसे लाख जिसकी चूड़ियाँ वगैरह बनती है. टैनिंग मटेरियल्स ऑल्सो. एंड देन गम, हनी, कत्था, वैक्स, रेजिन्स, बम्बू, मेडिसिनल हर्ब्स, हॉर्न्स एंड हाइड्स ऑफ एनिमल्स. सो एनिमल से भी जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का ही प्रोड्यूस होता है. एंड देन मटेरियल्स फॉर बेसिक इंडस्ट्रीज़. जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है हमारी, जो ज़रूरत पूरा करती है हमारी बेसिक चीज़ें, उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ को भी इससे मटेरियल मिलते हैं. लाइक वुड, ग्रास, सनोवर एंड बम्बू आर वेरी यूजफुल रो मटेरियल फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक पेपर, मैच, लैक, लेदर, ऑयल एंड हर्बल मेडिसिन. तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ में भी जो बेसिक रो मटेरियल आता है वो भी फॉरेस्ट से ही आता है. ग्रेजिंग लैंड फॉर एनिमल के लिए ये जंगल जो होता है वो चरने का अच्छा चारागाह होता है. एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है हमको. नेक्स्ट बेनिफिट इज़ एम्प्लॉयमेंट. 7.8 करोड़ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर द लाइवलीहुड. ओके, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी इसी रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट होती है. दैट्स वाई टोटल 7.8 करोड़ पीपल कहीं ना कहीं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉरेस्ट पर ही निर्भर होते हैं. फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी पैसा कमाने के भी बहुत काम आता है, क्योंकि फॉरेस्ट प्रोवाइडर्स लैक टर्पेंटाइन ऑयल, सैंडलवुड ऑयल एंड आर्टिस्टिक थिंग्स. तो इतनी सारी चीज़ें हमको मिलती है जो हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे विदेशी पैसा कमाते हैं. हेल्प्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती है, छोटे स्तर की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती है, उसके अंदर भी जो रॉ मटेरियल आता है इट कम्स फ्रॉम द फॉरेस्ट ओनली. लाइक तेंदुपत्ता, कैन, हनी, वैक्स एक्सेट्रा. ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स वहाँ से मिलते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेवेन्यू जनरेशन. हियर 670 करोड़ रुपीज़ पर एनम इज़ गिवन. रॉयल्टी एंड रिवेन्यू भी फॉरेस्ट से निकलता है. जब कोई उसका रॉ मटेरियल वहाँ से निकाल करके लाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ या कोई इंस्टीट्यूशन, तो उनसे गवर्नमेंट को रिवेन्यू कलेक्ट होता है, रिवेन्यू प्राप्त होता है. एंड रेवेन्यू इज़ मच मोर देन 670 करोड़ राइट नाउ. अभी इससे कई ज़्यादा रेवेन्यू हमको मिलता है पर ईयर. ओके, विच इज़ अ ग्रेट डील. सो द नेक्स्ट बेनिफिट्स विच आर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स विल अंडरस्टैंड टुमारो. सो आई होप you remember these points. Let us remind. Forest provides wood. Number one, wood is provided. Second,
छोटे छोटे जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं, माइनर प्रोड्यूस। देन थर्ड इज़ बेसिक इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल मिलता है। चारागाह होता है एनिमल्स को चरने के लिए। एम्प्लॉयमेंट देता है, लगभग 8 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज हम इससे कमा सकते हैं इसके प्रोडक्ट्स को विदेश में बेचकर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जैसे तेंदुपत्ता, तम्बाकू वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ाने में मदद करती है। एंड रिवेन्यू जनरेशन में भी बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है। ओके, थैंक यू।